again after a gap of nearly 1 month. I am back. Not 1 month, it's been slightly less than that, but still there has been a big gap, and after a gap of more than 15-20 days, back with our segment Market Talks with Pinnacle, and hopefully I'll try to be more regular here. Last few days have been very hectic, and I have tried my best to uh, tried my best to give videos to you, but for some reasons or the other, it has not been possible. So, but still, now I'll try to be more regular on it and try to give you regular updates. And so, today is Monday, and since the last time we discussed about the chart, a lot has happened over it. So, we'll start from exactly where we left off. So, first thing that we are going to discuss here is about this part, the budget day candle and the budget day range. And since we have been in that range regularly, so we'll just try to mark that, and you can see this range, or I'll and we'll just mark the upper and the lower boundaries. You can see the lower boundary 17,350 and the upper boundary as 17,971. So if you can see that we have been trading in this range for quite some time now, except for these 2 days when we just tried to, or when you say the sheep tried to get out of the herd. So it was only this time. Other than that, if you see that after the budget till today, we have had around 17 trading sessions, and that 17 trading sessions we have been within the range. Even today, the range tried to break on the downside, but it did not happen. So, and one more important thing, if you can see the line here is a 200-day moving average. And if you remember our today's commentary, we had already discussed that we should avoid being short at least for few days now, or at least even if we want to short, even if there is weakness in the market, we should wait. कुछ टाइम हम लोग को शॉर्ट करने से पहले वेट करना चाहिए. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 डे SMA के पास एक बहुत ही बढ़िया आज बाइंग आते दिखी है. आप यहाँ पे ये देख सकते हैं. यहाँ पे आपको अगर आज क्लोजिंग लेवल, इफ़ यू कैन सी, द क्लोजिंग लेवल इज समवेयर अराउंड 17,392, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो the closing level was around 17,406. So although the high of the day was somewhere around 17,450, and if you ask me, it was a very eventful day because we had multiple upswings and multiple downswings. So if you ask me, these type of actions happen on days normally where you could see the bottom. So if you can see, we'll just try to go into the lower time frame. 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर के अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, पहले 5 मिनट में अच्छी खासी सेलिंग आई थी, एंड फिर एक इमीडिएट अच्छी बाइंग आई और डे हाई आया. आफ्टर दैट वी अगेन फाउंड सेलिंग, वी ब्रोक द डे लो, वी केम डाउन, अगेन वी वेंट अपवर्ड्स. तो एक अच्छा खासा दोनों तरफ स्विंग हमें आज दिन भर हमें देखने को मिला है. एंड ऑन you can clearly see that both the times market formed sort of double bottom at the near level of 17,300 के आसपास के लेवल पे एक डबल बॉटम जैसा बनाया, और एक अच्छी खासी 100 पॉइंट्स की रैली हमें वहाँ पे देखने को मिली है. और भी अगर आप मुझसे कुछ चीज़ें पूछें तो मैं एक क्लियर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी को बोलना चाहूँगा, आज शॉर्ट नहीं होने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न थे. अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात है, अगर आप पिछले 7-8 दिन के कैंडल को देखें तो सारे रेड कैंडल आफ्टर रेड कैंडल बने हैं. सो मार्केट वॉज हाईली ओवरसोल्ड, एंड
आफ्टर बीइंग हाईली ओवरसोल्ड एक 200 डीएमए का सपोर्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया सपोर्ट हमेशा माना जाता है, सपोर्ट बोलिए रेजिस्टेंस बोलिए, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड अ गुड सपोर्ट और अ गुड रेजिस्टेंस। तो अब ये ऊपर की तरफ से 200 डीएमए पे आ रहा था, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक सपोर्ट तो हमें वहाँ पे मिलना ही था, और वो आज हमें देखने को मिल गया। सो नाउ वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर, 17,300 जो है वो अब हमारा लॉन्ग पोजीशंस के लिए क्लियर स्टॉप लॉस हो गया है। पोजिशनल लॉन्ग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनल लॉन्ग्स। एंड इन केस इफ यू वांट टू क्रिएट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस, वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, यानी कि 17,450। एनी लॉन्ग पोजीशन should come only and only above 17,450. So very very clearly अब आपको 150 पॉइंट्स का एक नो ट्रेड जोन मिल गया है। अगर हम उसके बीच में रहते हैं तो वी शुड नॉट have any kind of bias whether to be bull or whether to be bear। लेकिन अगर एक बार 17,450 ऊपर की तरफ ब्रेक होने लगता है, then definitely you can look for some long positions, upside targets। वैसे एक और चीज़ समझना है that upside में targets can be a bit limited, क्योंकि अभी मल्टीपल लेवल्स पे बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है दैट हम लोग 200 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस कर रहे हैं, तो अगर हम लोग कुछ टाइम और स्पेंड करके यहाँ से अगर बाउंस करें तो अपसाइड में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। सो इट वुड बी मच बेटर कि हमें एक इमीडिएट बाउंस देखने से बेटर थोड़ा साइडवेज मार्केट देखने को मिले, कुछ दिन फ्यू डेज साइडवेज मार्केट, एंड देन उसके बाद हम लोग बाउंस करना स्टार्ट करें, तो वो मार्केट के लिए ज़्यादा बेटर हो रहेगा। सो 17,300 से 17,450 जो है वो नो ट्रेड जोन है। डेफिनेटली 17,300 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद तो फिर आप 16,800 तक के भी लेवल्स आने वाले दिनों में देख सकते हैं। वी कैन नॉट डिनाई दैट दोज लेवल्स कैन नॉट कम। सो इफ 17,300 इज ब्रोकन, 16,800 के लेवल्स जो कि कुछ यहाँ पर हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगेन एज आई ऑलवेज से, इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म बुल मार्केट। सो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो यू शुड बी हैप्पी दैट यू विल बी गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू एंटर सम ऑफ द गुड स्टॉक। सो यू शुड बी रियली हैप्पी। वहाँ पे आएगा, वहाँ अच्छी बाउंस देखने को मिलेगी, फिर हम लोग वापस से फ्रेश पोजीशंस में एंटर करेंगे। सो इवन इफ अ डिप कम्स बिलो 17,300, यू शुड नॉट पैनिक। India is going to be a bull market. India is going to be the story of the decade, you can say. So stay invested, don't panic. Whatever levels I am giving as of now, they are mainly for swing trading or intraday trading purposes. On the upside 17,600 जो होगा वो एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस होगा। अबव 17,600 आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। सो द लेवल्स टू मार्क इज अबव 17,450, यू कैन गो ऑन फॉर 17,600 लेवल्स एंड नियरली 600 लेवल्स, प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स का बैंडविड्थ हमेशा रखिएगा अपसाइड में। एंड ऑन द डाउन साइड बिलो 17,300 वी कैन डेफिनेटली ट्राई सम शॉर्ट पोजिशंस वंस अगेन। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो आफ्टर 7 or 8 days ऑफ बैक टू बैक रेड कैंडल्स, आई विल नॉट बी अ शॉर्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई वुड नॉट लाइक टू बी अ बेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आप देख सकते हैं ये रेंज है, लोअर रेंज से हमें जब बाउंस मिला था पिछली बार तो एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला था। सो इट माइट हैपन दैट वी कैन हैव सम मोर बाउंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी देखिए हमने सेम 200 डेज मूविंग एवरेज मार्क कर रखा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 200 डेज मूविंग एवरेज को हमने अभी टच नहीं किया है। बट द ब्यूटिफुल थिंग इज वी हैव
bounced just up from just above the low of the budget day. I'm repeating again, from above the low, we have not even touched the low. और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाया. बैंक निफ्टी इज शोइंग लिटिल बिट मोर स्ट्रेंथ compared to the निफ्टी. ऑफ कोर्स प्रीवियस रैली वाज आल्सो लेड बाय बैंक निफ्टी, एंड आज की रैली अगर आप देखें तो देयर इज नो सरप्राइजेस फॉर गेसिंग. we had given a call for ICICI बैंक, एंड ICICI बैंक ने एक अच्छा मूव भी दिया था आज आपको. तो जो बैंक निफ्टी में आप मूव देख रहे हैं वो बेसिकली ICICI बैंक की देन है. सो इफ़ यू सी बैंक निफ्टी में एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बना है. सो डेफिनेटली यहाँ पे बुल्स ने बेयर्स को अच्छे से चैलेंज किया है. आप पिछले दिन भी एक 23 फेब को, जो कि थर्सडे एक्सपायरी था, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में दिखाई थी, बट फॉलो अप हमें नहीं मिला था. सो फॉर टुमारो बैंक निफ्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल अगेन कम्स अबव 40,350. उसके ऊपर आप आराम से लॉन्ग जा सकते हैं. अपसाइड में आपको 300-400 पॉइंट्स की रैली देखने को मिलेगी. ऑन द डाउन साइड आज का लो जो है 39,800, वो स्टॉप लॉस रहेगा. 39,800 के बाद सीधा 39,200 का टारगेट है. सो 39,800 के नीचे आप बिल्कुल से 500-600 पॉइंट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं. अबव 40,350 आप आराम से 300-400 पॉइंट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं. यही है बैंक निफ्टी का लेवल्स. तो एंड बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर स्ट्रांग लग रहा है. अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ICICI बैंक ने भी एक बढ़िया मूव दिया था, बहुत ही बढ़िया मूव दिया था. और 200 डेज मूविंग एवरेज का आपको यहाँ पे अच्छा सा इम्पॉर्टेंस देखने को मिल जाएगा. दिस वॉज द एग्जैक्ट रीज़न वाई वी एंटर्ड ICICI बैंक टुडे. 200 डेज मूविंग एवरेज से एक बहुत ही बढ़िया बाउंस हमें देखने को मिली है ICICI बैंक में. सो एंड ये कैंडल बहुत ही बढ़िया है. सो द मोमेंटम कुड माइट जस्ट कंटिन्यू इन कमिंग फ्यू डेज. तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा. दिस इज़ गुड. एंड अगर HDFC बैंक देखें तो HDFC बैंक अभी भी अप ट्रेंड में है, और आज एक बढ़िया मूव हमें देखने को मिल सकता था बट मिला नहीं है. बट इसने एक अच्छे सपोर्ट के लेवल पे आज सपोर्ट पाया है. तो इस लेवल के ऊपर आज, सो कल के लिए आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं. दैट अबव 1600 HDFC बैंक कैन डेफिनेटली लीड. आज के लो के नीचे बिल्कुल भी नहीं. सो 1580 जो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन अबव 1600 ये बैंक निफ्टी को और भी पुश दे सकता है, सिंस दिस इज़ द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ बैंक निफ्टी. सो एंड एक स्टॉक जो पर्टिकुलरली मैं नज़र में रख के बैठा हूँ एंड विच आई एम लुकिंग राइट नाउ इज़ बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस में बीते दिनों में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी आफ्टर अ डीप करेक्शन फ्रॉम द 7800 लेवल. 7800 के लेवल से 5600 तक के लेवल्स पे हमें देखने को मिले थे. मोर देन 25% करेक्शन हमें देखने को मिला था. सो आफ्टर दैट वी कुड सी अ गुड बाउंस फ्रॉम द लेवल ऑफ 5600 टू राइट अप द वे ऑफ 6500, एंड उसके बाद एक छोटा करेक्शन. बट अब अगर देखें तो यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट सा बनता दिख रहा है हमें. सो 6100 का लेवल को ध्यान में रखेंगे तो एंड आई एम नॉट सेइंग वी विल एंटर राइट अवे, बट 6100 का लेवल है एंड 6300 के ऊपर हम लोग एंट्री करने का कोशिश करेंगे. इसमें वी विल मेक एनी एंट्रीज ओनली अबव द लेवल ऑफ 6300. आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं. सो अबव दैट डॉटेड लाइन वी कैन कंसिडर सम long positions in Bajaj Finance. Other than that we are not considering. Below 6100 we might even consider short positions. So either way we can have a good trade in this. So इसको ध्यान में रखिएगा. एंड फ्रेंड्स एक बहुत ही कई बार मैं इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुका हूँ. सो बट स्टिल आई वुड लाइक टू डिस्कस इट वंस अगेन दैट सम पीपल वर आस्किंग दैट दे आर होल्डिंग सम स्टॉक्स and that's under loss. So guys, you need to understand this thing. Market is uncertainty.
ओके, मार्केट इज़ अबाउट अनसर्टेनिटी. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग यहाँ पे रिस्क मैनेज करते हैं, ना कि प्रिडिक्शन करते हैं. सो द रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज देयर. नो बडी इन दिस वर्ल्ड कैन टेल यू दैट एक स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा. वी जस्ट मैनेज द रिस्क. सो वेन एवर वी आर बाइंग समथिंग लाइक, लेट्स से बजाज फाइनेंस की ही अगर बात कर रहे हैं, तो वी आर बाइंग एट, लेट्स से हम लोग अगर करंट में भी बाई कर लेते हैं 6200 के प्राइस पे, तो वी आर वेरी वेरी क्लियर दैट 6100 के पीछे हम लोग इसको नहीं होल्ड करने वाले हैं. सो हमारा स्टॉप लॉस कितना आ जाता है, 100 रुपीज़ का. वी हैव टेकन अ स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज़. लेट अस से कि आपने 100 क्वांटिटीज़ बाई कर ली, तो 100 क्वांटिटीज़ पे 100 रुपी का स्टॉप लॉस अगर हम लोग लगाते हैं, सो दैट गोज फॉर, दैट गिव्स यू अ रिस्क ऑफ 10,000 रुपीज़, राइट. अब नाउ लेट अस सपोज व्हाट हैपेंस, Bajaj Finance, it comes down to 6,000 rupees, right? 6,000 rupees. Again, the game remains the same. What happens is, यहाँ पर भी अगर आप 6100 पे दोबारा से री एंट्री करने की, या आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया था प्रीवियस टाइम और होल्ड करके बैठे थे, एंड नाउ व्हाट यू वांट इज, लेट अस से समथिंग हैपेंस लाइक कि इसको 6000 में परचेज करना है, एंड इसको हम लोग 5800 का लेट अस सपोज स्टॉप लॉस लगाते हैं, या 5900 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, वॉट एवर इट इज़, एक जस्ट एक नोशनल है. सो 5900 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और ऐसे पॉइंट पे आप उसको एवरेज करने की कोशिश करते हैं. यू ट्राई टू एवरेज, ठीक है, ये नॉर्मली बहुत से लोग करते हैं, बट इट शुड नॉट बी डन. अब आप क्या करते हैं, 6200 पे आपने बाई किया था 100 क्वांटिटी, 6000 पे आप और 100 क्वांटिटी बाई कर लेते हैं. यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि अब आपके पास 200 क्वांटिटी हो गई, और 200 क्वांटिटी हो गई, और ये 100 पॉइंट्स, ये आपका स्टॉप लॉस. सो नाउ योर रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो ऊपर का लॉस है उसको अगर हम छोड़ भी देते हैं, तो इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ से फ्रेश एंट्री पर भी आपका रिस्क जो है वो डबल हो चुका है. योर रिस्क इज नाउ 20,000 रुपीज़. तो इन सब चीज़ों से बचिए. कभी भी एक सिंपल रूल हमेशा बना करके रखिए अपनी लाइफ में, that never average a losing stock. Having a losing stock in portfolio is not bad. Many people have it, but if you want to save yourself from a trauma, you should never try to average a losing stock. इसको और भी सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो आप इस तरह से समझो कि आपने सपोज करो एक साथ 10 बिजनेस स्टार्ट किए, उसमें से 5 प्रॉफिट बना रहे हैं, एंड 5 आर मेकिंग लॉसेस. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज, इफ यू हैव टू पुट फ्रेश मनी, आप कौन से बिजनेस में डालेंगे, द वन विच इज मेकिंग अ प्रॉफिट और द वन विच इज मेकिंग अ लॉस. सो योर आंसर 99% ऑफ द टाइम विल कम दैट द वंस विच आर मेकिंग प्रॉफिट, आप उसमें एक्स्ट्रा पैसे डालोगे. द वंस विच आर मेकिंग लॉसेज, you are not going to put fresh money into that. So if you are taking that decision in business, why can't you take the same decision when you are trading in the stock market? सो इस चीज़ को याद रखिए, नेवर एवरेज अ लूजिंग स्टॉक. आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट छोड़िएगा. बहुत दिन बाद हम लोग बात कर रहे हैं. आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर गोइंग फॉरवर्ड. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू.